Good evening, everyone. তোমাদের স্বাগত জানাই আনএকাডেমির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল লেটস ক্র্যাক ডব্লিউবি এক্সাম। তো গাইস, তোমরা এই চ্যানেলে নামেই দেখতে পাচ্ছ ডব্লিউবি এক্সাম। দ্যাট মিনস এই চ্যানেলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবতীয় প্রত্যেক পরীক্ষার নোটিফিকেশন প্লাস গাইডেন্স পেয়ে যাচ্ছ। তো তোমরা এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করান, বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। চলো, আনএকাডেমি অ্যাপে তোমরা আমায় কি করে ফলো করতে পারো সেটাও বলে দিই। প্রীতি কুমারী নামে আমায় সার্চ করতে পারো। সার্চ কি করে করবে, মানে কোন স্টেপ গুলো ফলো করবে? ফার্স্ট অফ অল আনএকাডেমি অ্যাপ ইনস্টল করে নাও, তারপর গোল সেট করে নেবে। গোল সেট করবে WBPSC। ওকে গাইস, তারপর WBPSC গোল সেট করার পর দেখো সেকেন্ড নম্বরে ফ্রি কোর্সেস দেখতে পাচ্ছ। তো সেই ফ্রি কোর্সেসে গিয়ে প্রীতি কুমারী সার্চ করতে হবে। সার্চ করার পর সি অল দেখতে পাচ্ছ। সি অল করলে থার্ড নম্বরে যে নামটা দেখতে পারবে সেটা তোমরা ফলো করে নিও। অ্যান্ড ফলো করলে কি হবে, ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমাদের টাইম টু টাইম তোমরা পেতে থাকবে, রাইট? এবার চলে আসি টাইমের ব্যাপারে একটু বলে নিই। তো তোমরা রোজ ইউটিউবে 6 PM আমার ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ। ইউটিউবে 6 PM আমার ক্লাস পাচ্ছ, অ্যান্ড অ্যাপে তোমরা 8 PM আমার ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ। ওকে গাইস, তো মনে রেখো 6 PM ইউটিউব ক্লাস অ্যান্ড 8 PM অ্যাপে তোমরা সায়েন্সের ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, ডেসক্রিপশন বক্সে যে তোমরা লিংক পাবে সেখান থেকে पूरा प्लेलिस्ट তোমরা যেতে পারো। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरा लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो जो भी क्लास आपको इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से लगती हो, मतलब ये है कि प्रॉब्लम अगर है उस लेक्चर में तो आप यहाँ से देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, এটা আমাদের টিম যিনি তোমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গাইডেন্স দিচ্ছেন। ওকে, চলে আসি আনএকাডেমি কেন তোমরা চুজ করবে, কেন তোমরা আনএকাডেমির প্ল্যাটফর্মে পড়াশোনা করবে, রাইট? তো ডেইলি লাইভ ক্লাসেস, স্ট্রাকচার্ড কোর্স, লাইভ টেস্ট এন্ড কুইজেস, আনলিমিটেড অ্যাক্সেস তোমাদের আনএকাডেমি প্রোভাইড করছে। এছাড়া একটা সাবজেক্টের অনেকগুলো টপ এডুকেটর তোমরা এখানে পাচ্ছ। তো যার পড়া তোমরা বুঝতে পারবে তার ক্লাসগুলো করতে পারছো। এবার চলে আসি ব্যাচ। ওকে, ব্যাচ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তোমাদের অনেক দিন থেকেই বলে আসছি যে WBPSC মানে WBCS এর এক্সিকিউটিভ পোস্টের তোমাদের ফর্ম ফিল আপ স্টার্ট হয়ে গেছে 24 ডিসেম্বর থেকে 15 জানুয়ারি অবধি লাস্ট ডেট তোমাদের দেওয়া আছে। তো ফর্ম ফিল আপটা অবশ্যই করো। এবার চলে আসি ব্যাচের সম্পর্কে একটু কথা বলে নিই। তো তোমাদের দুটো ব্যাচ স্টার্ট হয়েছে, একটা তোমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছ আর একটা 23 ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট হয়েছে। 100 days এর তোমাদের একটা স্পেশাল কোর্স স্টার্ট হয়েছে ফর ইউর প্রিলিমস এক্সামিনেশন। ওকে, অ্যান্ড চলে আসি 29 থেকে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা 90 days এর একটা NCERT বেসড তোমাদের ক্লাস স্টার্ট হয়েছে। ওকে, তো তোমরা সাবস্ক্রিপশন নিতে পারো, জয়েন করতে পারো ব্যাচগুলো। চলো চলে আসি আরো কি কি ফ্যাসিলিটি তোমাদের আনএকাডেমি প্রোভাইড করছে। তো যখন তোমাদের টাইম হবে ক্লাস করতে পারছো, ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ব্যারিয়ার হবে না, লার্ন এনি টাইম এনিওয়্যার। যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে এডুকেটরকে জিজ্ঞেস করো, উনি তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার করবেন। তাছাড়া যে কুইজ গুলো হয় সেটা এখানে পোলের মাধ্যমে হয়, মানে অ্যাপে যে কুইজ গুলো হয় দ্যাট মিনস ওইখানেও তোমাদের জন্য টাইম লিমিট থাকে। ওকে, যে টেস্ট এন্ড কুইজেস তোমরা দেবে তার রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যানালিসিস পেয়ে যাচ্ছ, প্লাস PDF অ্যান্ড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালও তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ। চলো এবার একটু সাবস্ক্রিপশনের ব্যাপারে কথা বলে নিই। তো 1, 3, 6, 12 and 24 মান্থের সাবস্ক্রিপশন তোমরা নিতে পারবে। কিন্তু যদি তোমাদের মনে হচ্ছে যে শুধু রিভিশনের দরকার, তাহলে তোমরা 6 মান্থের সাবস্ক্রিপশন প্যাক নিতে পারো, এটা এনাফ। কিন্তু যদি তোমাদের মনে হচ্ছে যে না, প্রিলিমস প্লাস মেন্স দুটোই প্রিপেয়ার করতে হবে, তাহলে তোমরা 12 মান্থের সাবস্ক্রিপশন নিতে পারবে। ওকে, চলো আরেকটা কথা বলে নিই যে যখনই কোনো সাবস্ক্রিপশন নেবে অবশ্যই এই কোডটা ইউজ করে নেবে, প্রীতি অ্যাজ আ কোড। দেখো, প্রীতি অ্যাজ আ কোড ইউজ করে নেবে। ইউজ করলে তোমাদের লাভ কি, তোমরা 10% এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, শুধু WBPSC এর জন্য নয়, যে কোনো পরীক্ষার জন্য তোমরা এই কোডটা ইউজ করতে পারো। ওকে, আদার PSC হতে পারে, ওকে, বা তোমাদের রেলওয়ে হতে পারে, SSC হতে পারে, টিচিং হতে পারে। তো যে কোনো পরীক্ষার জন্যই তোমরা এটা ইউজ করতে পারো। ওকে, IIT JEE যে কোনো পরীক্ষার জন্য।
তো WBPSC এর ক্ষেত্রে আমি ফি স্ট্রাকচারটা বলতে পারি যে 10% ডিসকাউন্ট নিয়ে তোমাদের ফি স্ট্রাকচার দাঁড়াবে এটা। ওকে, তো 6 মান্থের জন্য তোমরা 7695 অ্যান্ড 12 মান্থের জন্য 9405 তোমাদের পে করতে হচ্ছে। সাবস্ক্রিপশন কিভাবে নেবে সেটাও একটু শুনে নাও। গোল সেট করবে আগে, তারপর প্লাসে যাবে, প্লাসে যাওয়ার পর সি অল করলে, সি অল করবে, সি অল করলে দেখো তোমরা প্রত্যেক মান্থের এখানে ফি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছ। সেখান থেকে তোমরা লাস্টে দেখো একটা হ্যাভ আ রেফারেল কোড, তো সেখানে তোমরা অবশ্যই এই রেফারেল কোডটা ইউজ করে দিও, প্রীতি ইউজ করে দিও। অ্যান্ড তারপর যদি তোমরা কোনো কয়েন আর্ন করে থাকো তাহলে সেটা এখান থেকে রিডিম করা যাবে। ওকে, চলো আজকের ক্লাসে চলে আসি। তো আজকে আমরা পড়বো কি, আজকে সায়েন্সের ক্লাস 6 এর এটা লাস্ট চ্যাপ্টার, গার্বেজ ইন অ্যান্ড গার্বেজ আউট। একদম সোজা চ্যাপ্টার, এখানে শুধু তোমাদের বলা আছে যে কিভাবে তোমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারো। दैट मीन्स যে गार्बेजर কথা আমরা বলছি। ओके, तो कूड़ा करकट के बारे में आपको लास्ट के चैप्टर में बताया हुआ है। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का, इसके बाद हम लोग क्लास 7 में प्रमोट हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल आज का चैप्टर देख लेते हैं क्या बोला गया है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि गार्बेज जो है या कूड़ा करकट जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, मतलब ताकि पॉल्यूशन ज्यादा ना फैले, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी ने आपको 3R के साइकिल के बारे में बताया है, राइट। तो उसको हम लोग आज देख लेंगे। तो कुछ एक छोटा सा चैप्टर है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग गार्बेज की करते हैं, ओके, जब कूड़ा करकट की करते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स जो ऐसा वेस्ट जो कि पॉल्यूशन ना फैलाए, ठीक है, और साथ ही साथ खुद भी नष्ट हो जाए। दैट मीन्स हम जिस तरीके के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, किचन वेस्ट हो सकता है, कॉटन, मीट, पेपर, क्लॉथ, सिवेज, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अगर आप मिट्टी में दबा दो तो कुछ देर के बाद ये ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं। दैट मीन्स ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं, और साथ में अपने अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स ये लोग रखते हैं, माने ये कचरा जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स को अपने अंदर रख रहा है, वो सब हमारे मिट्टी में डाल दे रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से हम लोगों के यहाँ पर, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, वो यही तो है जहां पर हम लोग केमिकल का यूज बिना किए ही अच्छे तरीके से और अच्छे टाइप के, है ना, अच्छे क्वालिटी के हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो क्रॉप्स है उसको उगा पाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया का फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा है जो कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहला जगह रखता हो, तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। पूरे वर्ल्ड में ही है, पूरे वर्ल्ड का पहला स्टेट है सिक्किम, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात याद रखना है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का पोजीशन जो है वो एकदम पहला है, फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की हम लोग बात करते हैं तो फिर हमारा रैंक पीछे चला जाता है, हम लोग 9th नंबर पे चले आते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल सिक्किम यहाँ पे याद रखना है, ओके। इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के और 1-2 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऐसा स्टेट जो कि एलपीजी कनेक्शन, जहाँ पे पूरा 100% एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका हो, तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश यहाँ पर याद रखिएगा एलपीजी कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पहला कौन सा स्टेट है जो हर घर जल की व्यवस्था कर चुका है, तो वहां पर भी आपको याद रखना होगा गोवा, ठीक है। गोवा में हर एक घर में नल की व्यवस्था हो चुकी है, ओके। चलिए, मतलब पानी की व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट स्मार्ट सिटी पूछा जाता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट, ये इसको भी मैंने यहीं पे बता दिया। तो भुवनेश्वर जो है वो पहला स्मार्ट सिटी है, ओके। चलो, तो बायोडिग्रेडेबल समझ में आया, वैसे वेस्ट जो हार्मफुल ना हो और जो तुरंत डिग्रेड हो जाते हैं और हमारे मिट्टी को क्या दे रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, ठीक है।
चलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग किसको बोल रहे हैं? जाहिर सा बात है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कभी वेस्ट नहीं होते। आपने देखा होगा प्लास्टिक को आप मिट्टी में दबा के रख दो कितने भी साल के लिए, वापस निकालोगे वैसा ही निकलता है ना। तो मतलब ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। और ये ऐसे कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सॉइल पॉल्यूशन अगर किसी की वजह से हो रहा है तो इन सब वजह से हो रहा है। और आप इसको अगर जलाओगे तो फिर एयर पॉल्यूशन होने लगेगा, और क्या है ना। तो बिल्कुल पॉल्यूशन के लिए प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, टीन, एल्युमिनियम, पॉलिथीन बैग्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था ना स्वच्छ भारत अभियान, राइट। तो स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है आपको, 2 अक्टूबर 2014 से इसको स्टार्ट किया जाता है। और ये बात बोली जाती है कि महात्मा गांधी के 150th बर्थडे पे, दैट मीन्स 2019 तक हम लोग स्वच्छ भारत के अभियान की तरफ चले जाएंगे और हर घर में क्या होगा? शौचालय होगा, ठीक है। तो ये चीज तो 2019 तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो स्वच्छ भारत अभियान चलता है, एंड स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में आपको स्वच्छ सिटी की भी बात आप लोगों को याद रखनी होगी। तो स्वच्छ सिटी जो है 2015 से जो आपका डेटा आ रहा है, 2015 से जो डेटा आ रहा है, शुरुआत इसकी कब से हुई है? 2014 से। तो 2014 वाला डेटा कब आएगा? 2015 में। तो सिर्फ पहले वाले में मैसूर का नाम हम लोगों ने सुना, और उसके बाद से 4 बार, मतलब 2016 से लेकर अब तक की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 बार सिर्फ और सिर्फ इंदौर ने बाजी मारी है। तो इंदौर में मतलब वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। कैसे होता है? तो लैंडफिल तरीके से होता है। व्हाट इज लैंडफिल? आप लोग जानते हो ना, कचरे को क्या करते हैं? गड्ढे में दबा देते हैं, है ना। तो वो ही लैंडफिल है। देखो क्या लिखा है, सफाई कर्मचारी कलेक्ट्स द गार्बेज इन ट्रक एंड टेक इट to a low laying open area called landfill. Okay guys, तो बिल्कुल याद रखना है इसको। सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल गड्ढों में क्या कर रहे हैं? कचरों को भर देते हैं, और वो भी क्या अच्छे तरीके से, रिसाइकल तरीके से, मतलब जो गीला कचरा है उसको अलग, जो सूखा कचरा है वो अलग, ठीक है। तो इसी वजह से आपको किसका नाम सुनने के लिए मिल रहा है? इंदौर इस वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे आगे है, और सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में आपको 4 बार से सिर्फ इंदौर का नाम ही सुनने के लिए मिल रहा है। सोचिए। तो बिल्कुल हमारे को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा आसपास का हमारा शहर भी अच्छा हो सके, है ना, स्वच्छ हो सके। तो बिल्कुल इसको याद रखना है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे क्या हो रहे हैं, कुछ कूड़े के क्या हो रहे हैं, पहाड़ बन जा रहे हैं, है ना। देखो इस कॉमिक में तो यही दिखाया हुआ है, पिक्चर में यही दिखाया हुआ है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन गया, है ना, माउंट ऑफ लैंडफिल के नाम से। तो वंस अपॉन अ टाइम पीपल यूज्ड टू डंप हियर ऑल देयर बेस्ट, है ना। तो ये सारे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपको कचरा मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। लैंडफिल समझ में आ गई मेरे ख्याल से। लैंडफिल अभी बता दिया आप लोगों को, जो गड्ढे में कचरे को दबा देते हैं ना, वो हो गया आपका लैंडफिल, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग की। तो जब हम लोग कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो कंपोस्ट, खाद बनाना, हम लोग किसको बोलते हैं गाइस? সার বানাবো আমরা কি করে? তো যতগুলো অর্গানিক ম্যাটার আছে সবটাকেই যদি আমরা মিক্स করে দিই, राइट। जैसे कि मान लो सब्जी बनी आपके घर में, है ना, तो उसका जो छिलका है उसको आपने क्या किया? एक जगह पर स्टोर करते गए, ठीक है। इसी तरीके से बाकी फल के छिलके और भी जितने हैं वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, तो उन सबको हम क्या करते हैं? एक साथ अगर हम मिला ले, एक साथ हम लोगों ने क्या किया? सबको मिक्स कर दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वो सड़ने गलने लगेगा, और उसके बाद उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अलग हो जाते हैं ना। तो उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिलेगा? हम लोगों को एक कंपोस्ट मिलता है, मतलब एक खाद मिलता है, और उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसको यूज करने से हाई क्वालिटी, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की फल सब्जियां हमें मिल सकती है।
तो सिक्किम ने यही तो किया है, इसीलिए सिक्किम को हम लोग ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल कंपोस्टिंग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ओके गाइस, तो कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन कंपोस्ट किससे बना रहे हैं, हम हमेशा याद रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर से बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी कंपोस्टिंग में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ कीड़े मकोड़ों को डाल दे रहे हैं। अब सारे कीड़े मकोड़े को नहीं डालना है, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो ये काम कर सकता होगा, उसी को तो डालेंगे। तो फिर हम लोग फार्मर का फ्रेंड किसको बोलते हैं, चलो तो फार्मर का फ्रेंड हम लोग किसको बोलेंगे, फार्मर का फ्रेंड हम लोग किसको बोलेंगे, तो बिल्कुल हम लोग फार्मर का फ्रेंड जो है वो केचुए को बोलते हैं, अर्थवॉर्म को बोलते हैं। राइट गाइस, तो আমরা কৃষকের বন্ধু কাকে বলছি, কেঁচোকে। তো এখানে আমরা যে মেথডটা ইউজ করছি সেখানে কোন ওয়ার্ম ইউজ করব, সবসময় মনে রাখবে যে रेड वॉर्म আমরা ইউজ করি, लाल केचो यूज करी। ओके, तो बिल्कुल याद रखना है, भूला नहीं है कि रेड वॉर्म को हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, जो कंपोस्ट बना रहे हैं दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। एंड आपको मैंने पहले बहुत बार बताया कि भैया वर्मी का मतलब क्या होता है, वर्मी का मतलब होता है वॉर्म। राइट, वर्मिलियन याद है ना, हम लोग जो सेवई वगैरह खाते हैं उसके पैकेट पे लिखा हुआ रहता है, तो वर्मी मतलब हो जाता है वर्म। वो वर्म नहीं है, मतलब वो पतला पतला दिखता है ना, इसलिए बोलते हैं। खाना नहीं बंद करना है। चलो, तो वॉर्म जो है, वर्मी का मतलब हो गया वॉर्म। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखना है। हेलमिंथ वर्ड बोलते हैं ना, वहां पर भी उसका मतलब होता है वॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर रेड वॉर्म मतलब रेड केचुए को यूज करके जो हम लोग कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, मैंने सोचा आप लोगों के लिए एनिमेशन लगा दूं, लेकिन फिर कुछ लोगों को वो देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चलो सीधा से एक पिक्चर लगा दिया। तो याद रखना है, ये हो गया कंपोस्ट, जहां पर सारे ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा गला दे रहे हैं और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर ले रहे हैं। एंड वर्मी कंपोस्टिंग में, उसी कंपोस्ट में हम क्या कर रहे हैं, वर्म्स को डाल दे रहे हैं, तो वहां पर ये हो गया वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, चलो अब ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ये आपको लास्ट के तरफ थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि भैया 3R सिस्टम आप अपनाइए। व्हाट इज 3R सिस्टम भैया, तो 3R सिस्टम का मतलब हो गया कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब ये है कि हम अपने देखो, अगर हम बात करते हैं ना पूरे मेथड की, तो यहाँ पर ये चीजें हम लोग ऊपर के क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब 8, 9, 10 में इन चीजों को हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं। बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ रख लीजिए क्लास 6 के लिए, कि जब भी हम रिड्यूस की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब इसका है कि हम लोग अपने जितने, जैसे हम लोग प्लास्टिक बैग को अगर कम यूज करें तो चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेगा, उसकी जगह हम जूट के बैग का यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग अपने जो भी डिमांड्स है ना, उसको अगर थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि पॉल्यूशन कम होगा, है ना, तो हमारे को ही दिक्कत कम होगी। राइट, और इसके अलावा रीयूज, रीयूज मतलब ऐसा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज को जो बार बार हम यूज कर ले। ठीक है, मतलब कोई भी एक चीज है जिसको एक एक काम में लगाया, अब वो दूसरे काम में अगर लग सकता है तो हम लोग उसको भी दूसरे काम में लगा लेंगे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको रीयूज का तरीका अपनाना है। अब रिसाइकल, रिसाइकल जैसे हम लोगों ने क्या किया, सब्जी वगैरह के छिलके को खाने के लिए तो यूज कर लिया, अब उस छिलके को क्या कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं ना, तो कंपोस्ट बना लिया। तो रिसाइकल किसको बोलेंगे, रिसाइकल का मतलब ये हो गया कि जिसको अब हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कि हमारे घर में एक प्लास्टिक का चेयर था। ठीक है, प्लास्टिक का चेयर था, ये टूट गया। ठीक है, ये टूट गया, ये खराब हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो हमने इसको बेच दिया, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसी सुविधा नहीं है ना कि जिससे मैं इसको कुछ और बना दूं। तो अगर मैंने इसको बेच दिया और वहां पर वो लोग जो है जिनको मैंने बेच दिया, वो लोग इसका क्या कर रहे हैं, ये लोग बाल्टी बना दिए। ठीक है, बकेट जो है इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो ये रिसाइकल हो गया ना, मतलब एक प्लास्टिक के चेयर से अगर बकेट बन जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, वहां पर वेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम लोग रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा भी है, किसके लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए।
हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो भी आपका साइकिल जो साइक्लिक इकोनॉमिक बोलते हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहता है। साइकिल का मतलब क्या हो गया, जहां से शुरू किए थे वहां पर वापस चले आ रहे हैं। तो एक प्लास्टिक के चेयर से बकेट बन जा रहा है, बकेट जब टूट जाएगा तो उससे मग बना लेंगे। तो इस तरीके से जो ये साइकिल है चलता रहेगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिसाइकल। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी ये बातें ये ध्यान रखनी है कि जिन चीजों को हम कम कर सकते हैं उसको बिल्कुल कम करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे अपने डिमांड्स को। जहां पर यूज हो सकता है, जहां पर चीजों को वापस से यूज कर करके हम लोग चला सकते हैं, वो चीजें जरूर हम लोग रीयूज कर सकते हैं। एंड रिसाइकल में तो जहां पर यहाँ पर अगर हमारे पास वैसी कैपेसिटी है, मतलब वैसे सहूलियतें हैं अगर हैं, तो फिर हम लोग चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रिसाइकल के प्रोसेस में भेज सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हुई है कि आप किस किस प्रोसेस से रिड्यूस के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन दैट मीन्स नीड्स जो मेरे हैं, क्या उसको हम लोग कम कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स हम लोग सोच सकते हैं, अवेलेबिलिटी देख सकते हैं है या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, स्कोप देखो यहाँ लिखा है, पर्सनल, हाउस होल्ड, कम्युनिटी कम्युनिटी या बिजनेस, इन सब ये सब हमारे स्कोप्स हो गए जहां पर हम इन चीजों को कम ज्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो रीयूज जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, सेकंड हैंड मार्केट हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट हैंड मार्केट भी है हमारे पास, एफिशिएंसी, रिसाइक्लेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि हम लोग चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं रिसाइकल की, तो जो मटेरियल्स बोला ना मैंने, जो मटेरियल्स अब खराब हो गया, मतलब अब वो अ, जिस फॉर्म में था वो अब रहा नहीं। ठीक है, तो उसको हम रिसाइकल करने की कोशिश करें, तो वहां से दूसरे कौन कौन से मटेरियल निकल सकते हैं, रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता, टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, उसके बाद फिर उसको बाहर हम लोग छोड़ सकते हैं फिल्टर करने के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से याद रखना है, और ये 3R का मतलब याद रखना है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के ये 3R वाले तरीके हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन और यहाँ पर लीस्ट फेवर्ड। तो यहाँ पर डिस्पोजल जो है वो सबसे निचले स्तर पे आता है, हर चीज को फेंक देना ये सही नहीं है। चलिए, तो ये चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था गार्बेज वगैरह के लिए। एंड चले आते हैं इसके एमसीक्यूज पे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गार्बेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गार्बेज जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक, मेटल कंटेनर, ग्राउंड नट, शेल, ये सभी कंटेन करता है। चलिए, तो गार्बेज कूड़ा कचरा जो है ये सब कुछ रखता है, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, वेयर डू वी थ्रो अवे गार्बेज फ्रॉम आवर होम। तो हम अपने घर से कहाँ पे इन कचरों को फेंक सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कहाँ फेंक सकते हैं, घर के बाहर तो नहीं फेंक सकते ना, ऐसे खुले में नहीं फेंक सकते हैं। तो उसके लिए जब हम मेरे को डस्टबिन बनाया हुआ है, तो हम कहाँ फेंकेंगे इसको, डस्टबिन में ही तो फेंकेंगे। बोलता तो है बेचारा यूज मी, बोलता है ना यूज मी, तो बिल्कुल यहाँ पे यूज मी का टैग लगाकर घूमता है। तो भैया प्लीज उसको यूज करो जब वो खुद ही बोल रहा है, तो वही बात है। एंड और अगर कचरे की गाड़ी आती है तो आप फिर वहां फेंकिए, क्या दिक्कत है ना। एक गाना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाय हुम इज द गार्बेज टेक अवे फ्रॉम डस्टबिन। तो कौन जो है वो गार्बेज को डस्टबिन से निकाल के ले जाएगा, तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, कौन लेकर जाता है, सफाई कर्मचारी ही तो लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वेयर डू सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम डस्टबिन। तो डस्टबिन से कलेक्ट करने के बाद सफाई कर्मचारी जो है उस गार्बेज का क्या करते हैं। तो बिल्कुल आपको अभी बताया कि सफाई कर्मचारी जो है उस गार्बेज को कहाँ डाल देंगे, लैंडफिल एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, लैंडफिल एरिया जिसको डैम बोल रहे हैं ना, मतलब जहां पर मैंने बोला गड्ढे में क्या करते हैं, कचरे को भर देते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, लैंडफिल एरिया की बात कर रहा है कि लैंडफिल एरिया क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, मतलब इट इज अ लो लेइंग ओपन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज डम्प्ड। ठीक है, तो एक लो लेइंग एरिया होगा जहां पर क्या कर रहे हैं, सारे गार्बेज को कलेक्ट करके सिटी और टाउन में डंप कर दे रहे हैं। ठीक है, भर दे रहे हैं उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज गार्बेज हैंडल एट द लैंडफिल साइट। तो गार्बेज जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं लैंडफिल साइट में। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इट इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट एंड देन सेपरेट ओवर द लैंडफिल साइट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्या करते हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि यूजफुल जो है जिससे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसको रियूज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल हम लोग अलग करके रखेंगे, एंड जिसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते वो फिर अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से लैंडफिल साइट में क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ आर यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज यूटिलाइज्ड। तो कैसे हम लोग यूजफुल गार्बेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको डंप करके इन कंपोस्ट मेकिंग एरिया, ठीक है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपोस्ट खाद में चेंज कर सकते हैं, वहां वैसे एरिया में हम उसको डंप करेंगे, उसको दबा देंगे, ठीक है। तो एकदम মনে রাখবে। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो কি বলেছে, when sometimes in garbage rot completely and did not smell it। তো बहुत টাইম ऐसा होता है ना, অনেক টাইম দেখবে যে যে গার্বেজ গুলো কি হয়, পচে যায় কিন্তু স্মেল হয় না। তো সেটা জিজ্ঞেস করছে। তো একদম এইটার আনসার কি হয়ে যাবে, বিকাম ম্যানিওর, মানে সারে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, और ক্যান বি মিক্সড উইথ দ্য সয়েল টু প্রোভাইড নিউট্রিয়েন্ট টু প্লান্ট। তো দুটোই হয়ে যাচ্ছে, दैट मीन्स बोथ आंसरটা राइट। ओके, तो बहुत टाइम अगर कचरा सड़ जाए और फिर वो स्मेल भी ना करे तो इसका मतलब क्या है कि वो खाद में चेंज हो गया है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सॉइल के साथ मिक्स हो गया है ना, तो वो किसको, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड। तो जब सड़ जाते हैं या हम लोग कन्वर्जन हो जाता है, उनका चेंज हो जाते हैं वो लोग ऑर्गेनिक मैटर्स में, तो इसको और उससे क्या बन रहा है, मैन्योर, खाद बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी तो बताया था तुम लोगों को कि कंपोस्टिंग बोलते हैं जहां पे ये चीजें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में सिंपल फॉर्म में चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट, in some city we find dustbin in two different colors for the collection of garbage. These dustbin are usually of which of the following two colors। तो कौन से दो कलर के ये डस्टबिन होते हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल ब्लू एंड ग्रीन कलर के होते हैं, राइट। बिल्कुल याद रखना है, ब्लू एंड ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which kind of materials are to be collected in blue color dustbin। तो ब्लू कलर के डस्टबिन में हम लोग किस टाइप के मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे। तो एकदम याद रखना है कि वो मटेरियल्स जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मटेरियल जो हम लोग यूज कर सकते हैं, मटेरियल कैन बी यूज अगेन, ठीक है। तो ब्लू वाले में कौन सा कलेक्ट करेंगे, जो कि हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं, वैसे चीजों को ब्लू वाले में इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, तो फिर ग्रीन वाले में भैया कौन सा करेंगे। तो बिल्कुल ग्रीन वाले में हम लोग कौन सा करेंगे, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, यही हो सकता है ना यहाँ पे आंसर। जब ब्लू वाले में यूज करने वाला डाला तो ग्रीन वाले में दोज मटेरियल्स दैट रोट कंप्लीटली व्हेन buried in soil। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कंप्लीटली क्या हो रहा है, सड़ जा रहा है, ठीक है, और सॉइल में दब जा रहा है, उसको हम लोग ग्रीन वाले में डालेंगे, ठीक है। तो ब्लू वाले में हम लोगों ने किसको डाला, जिसको हम लोग वापस से यूज करने वाले हैं उसको डाला, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन वाले में किसको डाला, तो जो गीले होते हैं ना, मतलब जो गीले सब्जियों वगैरह के टुकड़े, फल के जो छिलके वगैरह होते हैं, जो कंप्लीटली क्या हो सकते हैं, रॉट हो सकते हैं, मतलब सड़ सकते हैं, उसको हम लोग ग्रीन वाले में डालते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज करेक्ट टू बर्न होगा ये, ठीक है। It is correct to burn huge heap of dry leaves that are collected at various place। तो is it correct, क्या पत्तों को, जो सूखे पत्ते होते हैं उसको जलाना सही है, क्या बोलते हो, सही है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा नो, सारे सूखे पत्तों को जलाना ये सही तो बात नहीं है ना, यहाँ से तो एयर पॉल्यूशन का भी खतरा होता है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग की जब ये बात कर रहा है, व्हाट इज वर्मी
व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? तो बिल्कुल वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होगा कि इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के हेल्प से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग बोल रहे हैं। एंड वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? तो बिल्कुल याद रखना है, रेड वर्म होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग आर, तो अभी बता दिया वो कौन से होंगे, तो उसको हम लोग रेड वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखना। हालांकि हम लोग यहाँ पे अर्थ वर्म को भी यूज करते हैं और रेड वर्म भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप बोथ कर सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल दोनों को यूज करते हैं इसलिए बोथ कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, द रेड वर्म यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग नीड फूड लाइक, तो उन जो रेड वर्म्स होते हैं ना, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो क्या खा सकते हैं, मतलब उनकी जरूरतें क्या है, चलो देख लेते हैं। तो उनकी जरूरतें क्या हो जाएगी, वेजिटेबल फ्रूट के जो वेस्ट होते हैं वो उनके खाने के नीड को पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, टू मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर रेड वर्म, एक कंफर्टेबल होम अगर मैं रेड वर्म्स के लिए बनाना चाहूँ तो वो क्या हो सकता है। देखो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास और इसके अलावे आपको आपके एग्जाम के लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बातें जो है वो टोटली साइंस को अग्री करती है, एकदम सही बात है, लेकिन स्टैटिक जीके को भी अग्री करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर रेड वर्म, तो रेड वर्म के लिए अगर आपको एक कंफर्टेबल होम बनाना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक पिट को हम लोग कितना खोदेंगे, 30 सेंटीमीटर ये डीप होना चाहिए, एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, और इसके अलावा क्या बोला गया है कि ये 30 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, तो इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। सिर्फ 30 सेंटीमीटर डीप कर दिया और टेम्परेचर चेक नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होगा, वो रेड वर्म्स जो है वो मर जाएंगे, तो इसीलिए दोनों चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी स्प्रेड एट बॉटम ऑफ पिट डक टू मेक होम फॉर रेड वर्म, तो रेड वर्म के लिए जो हम लोग घर बना रहे हैं, मतलब जो वो कंपोस्ट तैयार करेंगे, तो उसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे नीचे बॉटम के पोर्शन में आप लोग क्या रखोगे, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा कि बॉटम के पोर्शन में हम लोग एनी वन ऑफ नेट, चिकन मेस एंड वायर मेस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जाल लगाते हैं, ठीक है, नेट लगाते हैं, और साथ ही साथ चिकन के टुकड़े वायर्स के टुकड़े ये सब हम लोग वहां पे डालेंगे। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी गिवन टू द फूड फॉर रेड वर्म, तो हम लोग तो फूड के हिसाब से हम लोग रेड वर्म को क्या दे सकते हैं, तो बिल्कुल अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, क्या दिया था, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट दिए थे। नेक्स्ट देखो, फॉर रेड वर्म द फूड शुड बी, रेड वर्म के लिए फूड जो है वो कैसा होना चाहिए, फूड शुड बी, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुट एट अबव 2 to 3 सेंटीमीटर डीप इनसाइड द पिट, ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर की अंदर की तरफ, इनसाइड बोल रहा है, तो अंदर की तरफ आपके पिट के अंदर की तरफ आपको 2-3 सेंटीमीटर के ऊपर आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रेड वर्म, द रेड वर्म, तो रेड वर्म के बारे में आपसे पूछ रहा है, हैव टीथ टू ग्राइंड देयर फूड, do not have teeth to grind their food, need not grind their food, swallow their food, तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि भैया अर्थवर्म तो आप लोगों ने देखा है, सेम आपका उसी तरीके का रेड वर्म भी होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बोला जा रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि इन लोगों के पास जो है कोई भी टीथ नहीं होता, किसके लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए, ठीक है, फूड को ग्राइंड करने के लिए कोई टीथ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प द रेड वर्म टू ग्राइंड देयर फूड, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको फूड को ग्राइंड करने में हेल्प कर रहा है, ग्राइंडिंग तो होगी यहाँ पे, फूड को ये लोग ग्राइंड तो करेंगे लेकिन इनके पास टीथ नहीं है, तो फिर किससे करेंगे, तो फिर याद रखना है कि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग गिजार्ड का नाम देते हैं, ठीक है, तो মনে রাখবে গাইস, गिजार्ड থেকে রেড ওয়ার্ম কি করে, নিজের ফুডগুলোকে গ্রাইন্ড করে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলেছে, which of the following items then mixed in waste help red worm to grind their food, तो कौन सा फूड आइटम है जिसको हम लोग अगर वेस्ट के साथ मिक्स करते हैं तो फिर रेड वर्म जो है उसको आराम से ग्राइंड कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग
एक शेल जो है उसको पाउडर के फॉर्म में या शी शेल जो होता है उसको पाउडर के फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पर आराम से ग्राइंडिंग जो है हो सकती है फूड की, ठीक है। तो बोथ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड into less harmful substance by the process of composting। तो हम लोग किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ कैन नॉट पूछा है। ओके गाइस, तो जब भी ये आपसे कैन नॉट पूछेगा तो मतलब हम लोग पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये तो हो सकता है ना कन्वर्ट लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ये भी हो सकता है। पेपर भी हो सकता है, वो भी तो प्लांट से ही बन रहा है। तो प्लांट के किस पार्ट से, सेल्यूलोज से बनता है। तो याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछा है, सेल्यूलोज से बनता है। चलो, प्लास्टिक ऐसा है जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड। तो किसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, तो सबको कर सकते हैं ना। यहाँ पे पेपर अगर है तो उसको भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, मेटल कंटेनर्स को भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। चलो, अब बहुत बड़ा सा एक क्वेश्चन आया हुआ है, देयर आर 2 हिप्स ऑफ गार्बेज। दो गार्बेज के दो अलग अलग कंटेनर है, ठीक है। Hip A contains pills of fruits and vegetables, eggshell, tea leaves, food waste, etc. ठीक है, मतलब सारे क्या हो गए यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल वाले हम लोगों ने हिप ए में रखे हुए हैं। एंड हिप बी में देखो क्या है, पॉलिथीन बैग, एल्यूमिनियम फॉयल, ओल्ड शू, फिर आपका ब्रोकन ग्लास वेयर, ये सब रखा हुआ है। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले को बी में रखा हुआ है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले को बी में रखा हुआ है। Hip A and B are buried separately, different pots, and their pots are converted in with soil. तो इसको हम लोगों ने मिट्टी में दबा दिया अलग अलग कंटेनर में। After few days, soil is removed, and which of the 2 hips will appear black in color and why? तो कौन सा ब्लैक कलर का दिखाई देगा और क्यों, आपसे ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि जो बायोडिग्रेडेबल होगा वही तो मेरे को ब्लैक कलर का दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे तरीके से सड़ चुका है, मतलब सिंपल, अपने सिंपल फॉर्म में वो चेंज हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन्सिडेंसेस ऑफ डिजीज लाइक स्किन कैंसर इंक्रीजेस इफ। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर स्किन कैंसर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन लेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ओजोन लेयर डिक्रीज होने से स्किन कैंसर का क्या है, तो यूवी रे को जो एब्जॉर्ब करता है वो है ओजोन। अगर वो ओजोन यूवी रे को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है यूवी रे से। अब यही अगर डिक्रीज होने लगता है, मतलब उस थिन होने लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्किन कैंसर का खतरा बढ़ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू डिस्पोजल गार्बेज। तो गार्बेज को डिस्पोज करने का सबसे सही तरीका क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे बर्न इट नहीं, जला देना ये कोई तरीका नहीं हुआ। इसको क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को प्रिपेयर करना है मैन्योर के लिए, मैन्योर प्रिपेयर कर लेना है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को क्या करना है, रिसाइकल कर लेना है। तो मतलब दोनों तरीका सही है, बी और सी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल को खाद बना लेना है, नॉन बायो को रिसाइकल कर लेना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देख लेते हैं, प्लांट हेल्प इन सॉइल इरोजन, नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होता है अगर हम प्लांट लगाए तो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एम्बार्कमेंट आर बिल्ट अक्रॉस द स्लोप एंड स्लोप्स ऑफ हिल्स टू अवॉइड सॉइल इरोजन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है, स्ट्रे एनिमल हेल्प टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इज इंक्रीज, नहीं, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होने लगेगा, प्रिवेंशन तो ये दे नहीं रहा है। मतलब एक ही स्टेटमेंट मेरे को राइट दिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वाई डिस्पोजल ऑफ गार्बेज हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन बिग सिटी। तो मतलब गार्बेज को इधर उधर फेंक देना, डिस्पोजल करना उसका, ये हमारे जो बड़े बड़े शहर है ना, वहां पर एक सीरियस प्रॉब्लम होते जा रहा है। ऐसा क्यों है, क्यों, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए। गार्बेज इज कलेक्टेड इन लार्ज क्वांटिटी, ये तो एकदम सही बात है, बड़ी सिटी है तो यहाँ पर कूड़ा कचरा ज्यादा होगा। गार्बेज कंटेन्स मटेरियल लाइक प्लास्टिक, थर्मोकॉल विच डू नॉट डिकम्पोज, ये भी सही बात। गार्बेज इज नॉट सेपरेटेड विद वेट एंड ड्राई, तो गार्बेज को हम क्या कर रहे हैं, जो है गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़े सिटीज में एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनाना पिल्स जो है
चलो पहले इसको देख लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो बनाना पिल्स क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, राइट, जो आसानी से सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू रीयूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड मेटल कैंस। तो हम लोग प्लास्टिक बॉटल या मेटल कैंस का यूज कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग इससे दूसरे चीजों को तो बना सकते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि स्टोरिंग थिंग्स, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे किसी चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है प्लास्टिक बॉटल जो होता है ना, उसको पानी के लिए या कुछ चीजों को रखने के लिए मेटल कैन का यूज भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो रीयूज करने का यही एक तरीका है हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज कॉजिंग मोस्ट हार्म टू द एनवायरमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा हार्मफुल कॉज कर रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से, चलो आंसर होगा आपका प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स। उसके अलावा पॉइजनस वेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे ख्याल से, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ए और डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो पॉइजनस वेस्ट जो है वो भी एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, अच्छा वेट, ये सही है। प्लास्टिक जो है वो आपका एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो प्लास्टिक बैग जो है वो ज्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। पॉइजनस वेस्ट जो है वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है, राइट। तो यहाँ पर ए और बी तो होगा नहीं, मतलब बायोडिग्रेडेबल की तो बात हम छोड़ दे रहे हैं। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक बैग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लो लेइंग लैंड यूज्ड टू डिस्पोज गार्बेज इज कॉल्ड लैंडफिल एरिया बोलते हैं इसको। अभी हम लोगों ने पहले शुरुआत में ही इसको पढ़ा था। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू रिसाइकल वेजिटेबल वेस्ट, बोन्स, ड्राई फ्लावर एंड शॉर्डस्ट यू विल। तो अगर आपको यूज करना है, इसको रिसाइकल करना है, किसको, वेजिटेबल वेस्ट, तो आसानी से ये रिसाइकल हो सकता है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं इसका, मेक कंपोस्ट फ्रॉम देम, ठीक है, हम लोग इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, दिस इज अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर, इट इज प्रिपेयर फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इट इज। तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, तो बिल्कुल पेपर मैक इसको बोलते हैं, ठीक है, पेपर मैक बोल रहे हैं, जहां पे क्या हो रहा है, एक पेस्ट बना रहे हैं हम लोग किसे, क्ले और आपका पेपर से। ओके गाइस, तो इसको रिसाइकल करने का यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी डेवलप कंपोस्टिंग एरिया नियर द लैंडफिल। तो व्हाई डू वी डेवलप कंपोस्टिंग एरिया, क्यों हम लोगों को लैंडफिल एरिया के बगल में कंपोस्टिंग एरिया को डेवलप करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि लैंडफिल जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, ऐसा ही क्या, नहीं। तो इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइज सम यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज। गार्बेज के जो अच्छे कंपोनेंट होंगे ना, अच्छे इन द सेंस हमारे लिए जो यूजफुल होंगे, वो कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, उस कंपोस्टिंग वाले एरिया में डाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाई आर टू सेपरेट बिन्स प्रोवाइडेड फॉर कलेक्टिंग गार्बेज इन सम सिटी। क्यों हम लोग दो अलग अलग बीन्स का यूज कर रहे हैं, डस्टबिन का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइड टू कलेक्ट सेपरेट एंड मटेरियल दोज विच डू नॉट रोट इनटू द गार्बेज हिप्स एंड वेस्ट दैट रोट कंप्लीटली इनटू द। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो सड़ गल जाएंगे उसको हम लोग ग्रीन में डाल देंगे, और जो नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिनके साथ, उसको हम लोग ब्लू में डाल देंगे, ठीक है। तो बस इसीलिए हम लोग दो डस्टबिन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर अ लैंडफिल साइट हैज बिन converted into a park or playground, no construction is allowed over it for a period of, कितना होगा, यहाँ एक ही जगह आपको सोचना है कि कितना होगा।
तो आपको बताना है कि एक लैंडफिल एरिया को अगर हमको पार्क वगैरह में, प्लेग्राउंड के में कन्वर्ट करना है, तो कितने टाइम तक उस लैंडफिल एरिया में हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है 2 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब आपको 2 याद रखना है, ठीक है। 2 into 10 हो गया, तो मतलब यहाँ पे 20 साल हो गया, ठीक है। तो 20 साल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ए की जगह आपको हमेशा याद रखना होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ अ मास ऑफ रेड वर्म इज अज्यूम एज ए ग्राम, ठीक है, हाउ मच फूड कैन ईट वन डे। तो अगर ए ग्राम है किसी भी रेड वर्म का जो क्या बोल रहा है, रेड वर्म का जो मास है वो आपको बोल रहा है कि 1 ग्राम है, तो ये कितना खाना खाएगा डेली, मतलब एक दिन में कितना खाना खाएगा, तो 1 ग्राम ही खाएगा, जितना उसका वजन है उतना उतने के बराबर खाएगा वो खाना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, एक मैच करना है आपको कॉलम ए के साथ कॉलम बी को, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर मैचिंग अगर मेरे को बता रहा है तो आंसर क्या होगा वो पहले देख लेते हैं। लैंडफिल एरिया को क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल लैंडफिल एरिया क्या हो गया, लो लेइंग एरिया है, जहां पर लो लेइंग एरिया वेयर गार्बेज ऑफ अ सिटी इज डम्प्ड, ओके। मैन्योर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैन्योर की बात कर लेते हैं। तो मैन्योर क्या है, एक कंप्लीटली रॉटन गार्बेज यूज्ड फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट। कंपोस्टिंग की अगर हमसे बात कर रहा है तो कंपोस्टिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कंपोस्टिंग जो है वो आपका कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर। एंड वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। मतलब मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे हो जा रहा है सी, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वापस से आपको सेम चीज करना है। तो अभी हम लोगों ने ब्लू ग्रीन ये सब पढ़ ही लिया है, तो ब्लू को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करना। तो ब्लू को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि ब्लू को हम लोग प्लास्टिक या मेटल या ग्लास के लिए, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, सॉरी, उसके लिए यूज कर रहे हैं। ग्रीन को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ग्रीन को हम लोग वेस्ट दैट रोड कम्प्लीटली इसके लिए ही यूज कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मतलब हुआ, तो जहां पर क्या कर रहे हैं, एक यूजफुल, सॉरी ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, मेथड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, उसी को बोल रहे हैं। और रेड वर्म क्या बोल रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ये यूजफुल है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। PQRS जैसे है वैसे ही होगा। नेक्स्ट देखो, फिर से वापस से आपको फिर से दिया हुआ है एक मैचिंग करने के लिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। पहले बोल रहा है कि फूड फॉर रेड वर्म, तो टी कॉफी ये सब हो सकता है ना, मतलब आप लोग को बना चाय कॉफी उसको बना के नहीं देनी है, जो वेस्ट होते हैं ना वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो वेस्ट होते हैं वो। गिजार्ड क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राइंडिंग मटेरियल, ग्राइंड करने के लिए जो ऑर्गन यूज करते हैं रेड वर्म्स, उसी को बोल रहे हैं। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राइंडिंग देयर फूड। पेपर मैक क्या होगा, अभी पढ़ा था, क्ले और पेपर का जो मिक्सचर है, पेस्ट था, उसी को बोल रहे थे। और प्लास्टिक जो है वो जो बच गया, व्हेन हीटेड गिव आउट हार्मफुल गैस, राइट। तो मतलब इसका आंसर मेरे को क्या मिल रहा है, तो सेम मिल रहा है ना जैसा जो सजा हुआ है, तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वापस से एक डायरेक्शन आपको दे रहा है। Read a passage given below and answer the question, the following passage 1. So at the landfill site, the part of the garbage that can reuse is separate out from one that cannot be used as such. The non-useful component in is then sprayed over the landfill and then covered with a layer of soil, a landfill. तो आपको बताना है लैंडफिल है क्या, तो लैंडफिल क्या है, इज अ ओपन लो लेइंग एरिया वेयर गार्बेज इज डम्प। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर लैंडफिल एरिया किसको पूछ रहा है, तो बिल्कुल याद रखना है कि लो लेइंग एरिया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वापस से एक डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। एट द लैंडफिल साइट द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन be reused is separate out from one and cannot be used as such. The non-useful component in the sprayed over the landfill area. चलो इतना कुछ तो पहले भी लिखा हुआ था। After the separation of useful and non-useful component from the garbage at landfill site. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजफुल और नॉन यूजफुल को अलग अलग यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो
द हिप ऑफ नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज स्प्रेड ओवर द लैंडफिल साइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वापस से वही डायरेक्शंस है, देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वी डेवलप कंपोस्ट पिट नियर द लैंडफिल साइट। तो हम लोग जो है कंपोस्टिंग का एक एरिया बनाते हैं लैंडफिल साइट के पास। तो आपको याद रखना है ऐसा क्यों है, तो यूजफुल कंपोनेंट जो होंगे गार्बेज के उसको उस कंपोस्ट वाले एरिया में डाल सके इसलिए। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज फॉर प्लांट। The rotting and conversion of some material into manure is called, क्या होगा, कंपोस्टिंग बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिंग, बिल्कुल वहां पर डीकम्पोजिशन भी हो रहा है ना, नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर होगा कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे को इतना ही बोला है कि रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वापस से सेम पैसेज, नहीं पैसेज चेंज कर दिया है। इफ यू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम योर होम एंड पुट इट इनटू सेपरेट पिट कवर्ड बाय अ सॉइल इन फॉर फ्यू डेज, यू विल find that something in the garbage road they form manure which is used for plant. Which of the following observation was the correct reporting? तो आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा। all the materials in all the pit rotate completely and there was no smell. In some cases there was a partial rotting. In some cases there was no change at all. तो ये सारी चीजें होंगी ना, अगर मान लो कि हम किसी गार्बेज को, मतलब कूड़ा करकट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने घर के पास ही में पिट में दबा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब हम उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा होगा जो कंप्लीटली सड़ गया होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा जो अभी थोड़ा बहुत जो है उस स्टेज में होगा, कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो मतलब ऑल आर करेक्ट। वापस से देखो सेम चीज दे रहा है लेकिन आपको पूछा कुछ और है। इफ यू are asked to identify some of the item of your kitchen waste that garbage from kitchen, which of the following are likely to present? मतलब आपको किचन गार्बेज पूछ रहा है कौन कौन सा होगा, तो मेरे ख्याल से सारा ही होगा, है ना। फ्रूट वेजिटेबल पिल्स जो होते हैं, छिलके जो होते हैं, एक शेल भी आएगा, ड्राई लीव्स भी आएगा, तो यहाँ पर सारा हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। दिस method of preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting. For vermicomposting we have to decompose कंपोस्ट पिट हैव अ डेप्थ ऑफ अबाउट, अभी पढ़ा था हम लोगों ने कितना डेप्थ होना चाहिए, तो बिल्कुल 30 सेंटीमीटर, और ना ज्यादा कूल और ना ज्यादा हॉट। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद ध्यान में रखना होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इस चैप्टर के लिए तो इतना ही, और हम लोग यहाँ पे और कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही तुम लोगों को यहाँ पे बता दिया है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस अनअकैडमी ऐप में आप सर्च कैसे करेंगे, मतलब फॉलो कैसे करेंगे, तो गोल सेट कर लीजिएगा WBPSC, उसके बाद आप चले जाइए फ्री क्लासेस में। फ्री क्लासेस में जाने के बाद आप सर्च कीजिए प्रीति कुमारी, और उसके बाद आप वहां पे फॉलो कर लीजिए, तो क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। वैसे यूट्यूब पे आपको 6 बजे हमारी क्लास मिल रही है, 6 PM हर दिन। ठीक है, यूट्यूब पे, और 8 PM जो है आपको हमारी क्लास जो है वो मिल रही है ऐप पर। ठीक है, ऐप पर हर रोज 8 बजे आपको हमारी क्लास मिल रही है। ओके गाइस, तो बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में जो है पहले ही बता दिया था। आप लोग 1, 3, 6, 12, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो ले सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया था WBCS के बारे में। आप 24 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है, तो प्लीज इसको मिस ना कीजिएगा, 15 जनवरी तक। साथ ही साथ आपके 2 बैचेस भी यहाँ पर स्टार्ट हुए, 23 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हुआ, एंड आपका 29 दिसंबर से दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है। तो 23 दिसंबर वाला जो है वो 100 डेज का स्पेशल कोर्स है जो आपको प्रीलिम्स के लिए करवाया जा रहा है, एंड आपका 29 दिसंबर को जो स्टार्ट हुआ है वो आपका अकॉर्डिंग टू NCERT आपका 90 डेज का कोर्स है। ठीक है, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए है, तो आप कोई भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके आगे भी और भी बैचेस आएंगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, आपको, और जब भी आप कभी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे इस नाम को,
ठीक है, तो बिल्कुल इस कोड को आप यूज कर लीजिए, देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको और फायदा है कि आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो बिल्कुल इस 10% की डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। सिर्फ WBPSC के लिए नहीं, आप जिस भी कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहें, वो आपका रेलवे का कोर्स हो सकता है, वो आपका बैंक हो सकता है, वो SSC हो सकता है, वो आपका टीचिंग हो सकता है, टेट हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी कोर्स के लिए, IIT JEE हो सकता है, नीट हो सकता है, तो ये किसी भी कोर्स के लिए आप इस कोड को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि UPSC के लिए नहीं यूज कर सकते, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टेट PSC के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो सारी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, चलो, इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग क्लास 7 के चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 वाला चैप्टर जो है वो आपका इतना ही था, क्लास 6 के चैप्टर इतने ही थे, कुल मिलाकर 16 चैप्टर थे। उन सबका मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस साथ ही साथ MCQ भी करवा दिया है ना। तो बिल्कुल आप लोग अब क्लास 7 में प्रमोट हो रहे हैं, तो क्लास 7 के चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट दिन से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, इस कोड को बिल्कुल याद रखना है, और जो लोग BCS के एस्पिरेंट हैं उनको बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो क्लास 7 के NCERT को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।